Hello everyone, welcome back. As in the previous class, I introduced the new unit. That unit was how do organisms reproduce. Today in this class, I am going to introduce a new topic of the same unit, and that topic is about the DNA copies. Now in your NCERT book, there is one question, that is, do organisms create exact copies of themselves? Means क्या organisms जो हैं वो अपने जैसी same copies form करती हैं? So now let us start with this concept, and please pay attention, this is really very important concept. So what is it बच्चे? Because you know every organism they are similar to each other. Every organism, yeah, all the organisms they are similar. I am saying here that all organisms are similar. All organisms are similar. All organisms are similar means their body designs are similar. Means how they are made up of. As I told you in class 9, and you know that cell is the basic structural and functional unit of the life. So all organisms, the body design, all organisms are similar means their body designs are similar. And if the body designs are similar means they should have the same blueprint. So I am talking about 2 points. One is if all the organisms are similar because their body designs are similar. And next, if body designs are similar, if body designs are similar, then their blueprint should be similar. This is the exact sentences which is written in your textbook, that all organisms are similar because body designs are similar. And if body designs are similar, then their blueprint must be same. So here is one term, and that term is the blueprint. So what is here blueprint? Blueprint is here, students, DNA. Blueprint is here, the DNA. And now how it forms a blueprint in a living organisms, because you know every living organism, if we talk about the every living organisms, then living organisms they are made up of cells, okay, and cells they have nucleus. As you studied in your previous class, class 9, the first unit, cell, and nucleus contain the chromosomes, and this chromosome have the genetic material called the gene, which is the part of the DNA, and this gene or DNA is the heredity, or you can say here the blueprint. Am I clear? So living organism, what is the blueprint here? Blueprint here is the gene or the DNA. Okay, so that's why if the living organism, their body design is similar because so that's why their blueprint must be or should be the same. Means whenever here if cell is divide, अगर हम एक सेल की बात करते हैं तो सेल में ये न्यूक्लियस होता है,
दिस वन इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। अगर सेल डिवाइड करेगा तो सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस भी डिवाइड करेगा। न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो न्यूक्लियस कंटेन क्या करता है, दिस ब्लूप्रिंट डीएनए। हमने कहा कि से एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेल की डिवीजन होगी और सेल डिवाइड करेगा तो डीएनए भी, एक सेल डिवाइड किया तो उसका डीएनए डिवाइड कर गया, से इट डिवाइडेड इनटू, ओके लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल, से दिस इज अ सेल। और अगर एक सेल में डिवीजन होती है तो उसका जो डीएनए है वो 2 में डिवाइड हो जाता है, दिस इज द डीएनए पार्टिकल। अब एक तो सेल था जिसमें डीएनए, ये तो ओरिजिनल सेल था यानी कि पेरेंट सेल है। सेकंड जो डीएनए होगा वो विदाउट एनी, ये जो मैंने डॉटेड स्ट्रक्चर में बनाया है, दिस डॉटेड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द डीएनए विदाउट एनी सेल्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें कोई भी सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं है इसके सराउंडिंग। तो इट मीन्स क्या हुआ कि जो डीएनए विद सेलुलर स्ट्रक्चर होगा दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द लाइफ। बिकॉज ये जो सेल होगा, सेल क्या करते हैं, सेल में डीएनए है और हमें पता है सेल ही डिवाइड करते हैं और सेल की डिवीजन से डीएनए डिवाइड होगा और वो डीएनए ही क्या होगा, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होगा। तो अगर हमने कहा कि यहाँ डीएनए डिवाइड किया और जिस डीएनए के सराउंडिंग सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं है तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट डीएनए विल नॉट एग्जिस्ट। Okay, so from here we find out that every living organism contain the blueprint and that blueprint is the DNA. And whenever a living organism reproduce, then various events occurs during the reproduction. So here I am going to tell you about the events that occur during reproduction, that occurs during the reproduction. So dear, first of all, what is the first event? The first event is the, what is it? Copy of the DNA. Copying of DNA. Next one is the cell division. The third one is formation of reproductive parts. And then the fourth one is development of reproductive organs into, या reproductive part into the offspring. These are the following 4 events. For example, I am going to explain you these events. Say first of all we consider the example of an amoeba. In the amoeba, this is the nucleus of the amoeba. Then what will happen? Copy of the DNA means nucleus will divide in this way. These are the 2 nucleus. Cell copy हो गई, copy के बाद copy का means nucleus के 2 part हो गए. Cell division होगा तो cell division से in this way सेल डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बन जाएंगे और ये फाइनली वॉल डिसॉल्व होके और ये कितने ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, 2 न्यू ऑफस्प्रिंग्स. सो दिस इज द इवेंट. तो सबसे पहले हमने क्या कहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है, कॉपी ऑफ द डीएनए. इस प्रोसेस को हम और क्या कहते हैं,
डीएनए कॉपी जो होता है, डीएनए कॉपी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस। डीएनए कॉपी का मीनिंग होता है फॉर्मिंग ऑफ द, और यू कैन से फॉर्मेशन ऑफ डीएनए इन द सेम स्पीशीज, फॉर्मेशन ऑफ द आइडेंटिकल डीएनए इनटू द सेम स्पीशीज। हमने कहा कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि से ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स में टोटल नंबर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो 46 जो है फादर पेरेंट है, दिस इज द से फादर पेरेंट एंड दिस वन इज द मदर पेरेंट। तो यहां क्या होगा, 46 क्रोमोसोम फादर पेरेंट में होता है, 46 क्रोमोसोम मदर पेरेंट में होता है, और जो ये प्रोजेनी है यानी कि जो न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू जनरेशन प्रोड्यूस होगी, ये 23 फादर पेरेंट से लेती है और 23 क्या लेती है, मदर पेरेंट से। तो ये क्रोमोसोम ट्रांसफर कैसे होती हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। और ट्रांसफर क्या होता है, दिस ब्लूप्रिंट। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द डीएनए कॉपिंग, द ट्रांसफर ऑफ द डीएनए इनटू द ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम स्पीशीज। Am I clear? Then आपका क्वेश्चन आता है, do organisms create exact copies of themselves? क्या वो अपने ही जैसी आइडेंटिकल कॉपीज बनाती हैं? देखो सिमिलर कॉपीज तो बनाती हैं, बट क्या वो कॉपीज आइडेंटिकल होती हैं? तो इसका आंसर क्या है कि हमने कहा दिस इज द ब्लूप्रिंट डीएनए, और अगर इस डीएनए में कोई चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, देखो अगर तो चेंज होगा देन इन दैट केस, देखो हमने कहा कि ये जो डीएनए होता है ना बच्चे, ये डीएनए क्या फॉर्म करता है, ये डीएनए दे फॉर्म प्रोटीन्स। ओके, अगर वेरिएशन नहीं हुई तो क्या होगा, all the organism their body design will be similar. Okay, and if there will be change in the formation of protein, अगर प्रोटीन फॉर्मेशन में चेंज होगा, बिकॉज ये प्रोटीन कौन बना रहा है, ये प्रोटीन किसकी है, दीज प्रोटीन आर द पार्ट ऑफ दिस ब्लूप्रिंट डीएनए। अगर प्रोटीन फॉर्मेशन में चेंज होगा तो उसको हम कहते हैं वेरिएशंस, और अगर वेरिएशंस होंगी तो बॉडी डिजाइन्स क्या होगा, बॉडी डिजाइन ऑल्टर्स। ऑल्टर का मतलब क्या है, चेंज होगा। ओके, अब ये जो टर्म है कि डीएनए क्या होता है, प्रोटीन कैसे ऑल्टर करते हैं और कैसे जो है बॉडी डिजाइन ऑल्टर होगा, आई एम गोइंग टू again explain you in detail by giving one example. So hope you have understood the meaning of the blueprint here and also the DNA copy and the events that occur during the reproduction. So just to clarify this question, answer of this question, again I am going to tell you one simple example. So let us start with that example. And in that example, I will tell you that what exactly is the heredity material. So बच्चे, as I told you that blueprint is here what? Blueprint is here the DNA. Blueprint is here the DNA. DNA, full form of the DNA is the deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid. Okay, and
Again keep that sequence in the mind. That sequence was living organisms, और living organisms मैंने आपको बताया made up of cell contain the nucleus contain chromosomes, and chromosomes contain the blueprint gene or the DNA, and this DNA form the protein, and if this protein structure is similar, then our body design will be same. And if there is a change in protein formation, then body design will alter. तो हमारा body design क्या हो जाएगा? Change हो जाएगा. For that, I am give you one example that DNA is what? DNA is made up of three things. One is nitrogenous base. DNA is composed of nitrogenous base. Then sugar molecule. And the third one is the phosphate group. तो डीएनए की हमने कहा कि जो प्रोटीन फॉर्मेशन है, डीएनए प्रोटीन बनाता है, तो अगर प्रोटीन अल्टर हो जाती है, अल्टर कैसे होती है? आई एम जस्ट ड्यू टू दिस चेंज इन दीज नाइट्रोजीनियस बेस. ये जो नाइट्रोजीनियस बेस होती है, अगर ये चेंज हो जाती हैं तो क्या होगा? प्रोटीन स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल से राम वियर्स रेड कैप. Ram wears red cap. Now if I introduce the letter B in between R and E, then how I will write it? I will write it as Ram wears REIDCA and P. ठीक है, सॉरी बी हियर, बिकॉज मैंने बी लेटर को इंसर्ट किया है, तो बी लेटर ऑलवेज नाइट्रोजीनियस पेयर जो होती है वो ट्रिपलेट की फॉर्म में, ट्रिपलेट का मतलब 3 का पेयर एग्जिस्ट करता है. तो यहां देखो, अगर इस सीक्वेंस को रीड आउट करते हो, इस सेंटेंस को, तो ये सेंटेंस क्या हो गया है? चेंज. इन द सिमिलर वे, अगर डीएनए की सीक्वेंस में नाइट्रोजीनियस बेस चेंज होगा तो प्रोटीन फॉर्मेशन क्या हो जाएगी? वेरी करती है, चेंज हो जाती है. और अगर प्रोटीन फॉर्मेशन वेरी करेगी तो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे? ऑर्गेनिज्म देयर बॉडी डिजाइन विल ऑल्टर. और हम कहते हैं कि अगर जीन में चेंजेस आती हैं, चेंज इन द डीएनए, तो डीएनए सीक्वेंस के अंदर अगर चेंजेस आती हैं, देन दैट बायोलॉजिकल फिनोमिना इज द वेरिएशन. एम आई क्लियर? वेरिएशन का मीनिंग होता है चेंज आना डीएनए में. और ये वेरिएशंस ही क्या होती हैं? वेरिएशन दे आर द बेसिस ऑफ द इवोल्यूशन. एम आई क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस वेरिएशन. वेरिएशन को अगर आप डिफाइन करते हो तो चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस ऑफ द सेम स्पीशीज. Am I clear? नेक्स्ट जो आपका आता है दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन. इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन की, वेरिएशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है? तो बच्चे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं सेम हैबिटेट या पर्टिकुलर हैबिटेट. और
अगर वो पर्टिकुलर हैबिटेट ऑक्यूपाई करते हैं तो उसके लिए हम कहते हैं एक वर्ड दैट इज निच। तो निच जो है, निच पे भी स्टेबिलिटी जो होती है वो डिपेंड करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। और यू कैन से कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो किससे लिंक्ड होता है, टू द स्टेबिलिटी ऑफ द निच, कि ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ वी कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ द बैक्टीरिया, अगर हम बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लेते हैं तो हम कहते हैं कि बैक्टीरिया में 2 केसेस आते हैं। एक तो हमने कहा कि एक केस में क्या हुआ, ऑर्गेनिजम्स में नो वेरिएशन हुई, कोई वेरिएशन नहीं हुई। और एक हमने कहा कि बैक्टीरिया का एग्जाम्पल हम बाद में बात करते हैं, लेट्स से अबाउट द ऑर्गेनिजम्स। एक हमने ऑर्गेनिजम्स लिए जिनमें कोई वेरिएशन नहीं हुई, एक ऑर्गेनिज्म लिए विद वेरिएशंस। तो डियर क्या होगा, फिर हमने कहा कि दोनों का जो क्लाइमेट था वो चेंज कर दिया। तो यहां क्या आएगा, चेंज इन क्लाइमेट, चेंज इन द क्लाइमेट। तो जिन ऑर्गेनिजम्स में कोई वेरिएशन नहीं हुई, अगर क्लाइमेट चेंज हो जाता है तो वो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, वो ऑर्गेनिज्म दे विल नॉट सर्वाइव, उनका सर्वाइवल नहीं होगा। और जो जिन ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशन होंगी वो फर्दर 2 टाइप्स के होंगे, एक तो होंगे वेरिएंट और एक होंगे नॉन वेरिएंट। वेरिएंट वो होंगे जिनमें वेरिएशन हो जाती हैं, और जिन ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशन होंगी वो सरवाइव करेंगे, और जिनमें वेरिएशन नहीं होंगी दे विल नॉट सरवाइव। वेरिएशन होंगी मीन्स जो वेरिएशन ऑर्गेनिजम्स के लिए बेनिफिशियल है, और जो ऑर्गेनिजम्स के लिए बेनिफिशियल नहीं होंगी वो क्या होंगे, दे विल नॉट सरवाइव। ठीक है, सो वेरिएशन में बी बेनिफिशियल एज वेल एज फेटल। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक दैट बैक्टीरिया क्या करते हैं, वाटर में एग्जिस्ट करते हैं, और ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज लाइक द ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो कुछ बैक्टीरिया जिनमें वेरिएशंस हो गई थी, तो जिन ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशन हुई वो चेंज इन क्लाइमेट में क्या करेंगे, सरवाइव करेंगे, और जिनमें वेरिएशन नहीं हुई वो क्या करेंगे, दे विल नॉट सरवाइव। सो द सर्वाइवल इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द वेरिएशन. So this was all about the variation, that variation may be beneficial as well as fatal. So am I clear? So I think so today you got the answer to this question, that do organism create exact copies of themselves? So answer to this question depend upon the variation, because if there are variation in the DNA then cell will survive under the change in the climate condition, and if their organism will not have any kind of variation then the organism will not survive. So that's why we say that organism they form similar copies but they all are not identical to each other. So this was all about the today's concept. So with this again, thanks to all.